Hey, hi everyone. Hi Jaydeep. Hi Puneet, how are you? I'm good, man. How are you? I'm good, I'm good. Oh, nice. I think we already have 400 viewers. Yeah, All credit goes to you. सारे thank आपके you, thank fans you, हैं. thank you so much. Hello everyone who has joined us for the live session. It's going to be really good, informative, and it's going to be something good to, know about photography world and cinematography world. So, I yeah, think we already have a good audience here. yeah, Let's start. they are not going to move away. Nice. I'm sure. Yeah, I'm very sure that everybody knows this, but congratulations, 100,000 followers on YouTube. I mean, how did thank you, you thank you. manage that? मैन आई सीरियसली मुझे पता नहीं मैंने जब स्टार्ट किया था 2011 हाँ, में मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इट विल बी सो मच हार्ड वर्क इट विल बी सो मच ऑफ एडिटिंग आवर्स एंड शूटिंग आवर्स तो बहुत सारा कुछ क्रेडिट जाता है जो राइट व्यूअर्स है उन लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत सारा लव दिया और कमेंट किए सब मुझे बूस्ट अप देते रहे मोटिवेट करते रहे तो आई हैड अ गुड टाइम ऑन यूट्यूब एज वेल एज on the field doing weddings and pre-weddings and everything. So it was a good journey. राइट I started in 2011 and now it's 2021. So 10 years, 100,000. wow. Yeah, Very nice. Congratulations once again, and thank you so much for coming on our platform and pleasure, pleasure. doing this with us. I mean, we can't thank you enough, actually. Oh my God. Thank you for having me on this platform. And I'm really thankful for, this platform to, talk about more of, camera stuff and everything. So thank you so much for Right, having me. right. Jaideep, I think most of us already know, but थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में अगर बताओगे तो it will be Yeah. great. So Okay. नए joinees हैं, मजा आए. Yeah. तो 2012 में मैं ऑस्ट्रेलिया से सूरत आया आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर माई MBA पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करने के बाद इधर आया तो स्कोप कुछ था नहीं मेरे पास आई नेवर न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू डू एक फ्रेंड था जो फोटोग्राफर था मैंने देखा उसका काम मुझे अच्छा लगा पूछा किसी और को क्या होता है क्या नहीं होता है आई वेंट टू FX स्कूल मुंबई आई स्टार्टेड स्टडिंग फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग जस्ट एज अ हॉबीस्ट नथिंग एल्स हॉबी था मजा किया सीख लिया और slowly I got leads with my work did my talk or the thing moreover that I got good references from the people who have been in this field already since last many years तो बहुत सारे Hmm. लोगों ने मेरा काम रेकमेंड किया मुझे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया सबके साथ लाइक तेरा काम ऐसा है तो इसके साथ बातें करिए वो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग विथ स्मॉल फर्म्स थोड़े मीडियम फर्म्स बड़े फर्म्स उससे बड़े फर्म्स देन इंटरनेशनली सो since 2014 till 2021 I have been working in wedding industry and I've traveled more than 10 countries and worked in I don't know many cities I can't even count so it's a really good journey. मैं ना अभी आपका इंस्टाग्राम जब भी वापस देख रहा था ना, I was हाँ. telling same thing. यार सब जगह जाके आए हैं यार, हमें भी यहाँ जाना है, हमें भी यहाँ जाना है. Yeah, Feeling a little. no it's good to explore sometimes when I get time I just go off take my mind like away fresh हो जाता हूँ सुबह का Right. वॉक लेके आता हूँ और it's good for work as well for the body as well and win-win situation for everything. Absolutely, absolutely. Yeah. So tell us, Jaideep, जब आप बोलते हो कि आप इतने साल से वेडिंग सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे हो, एग्जैक्टली वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में ऐसे कौन से एरियाज है जो आपको बहुत पसंद आते हैं, आपको स्पेशली अच्छे लगते हैं? Okay, so when I'm shooting wedding, uh, the most special stuff that I love about wedding is shooting couple as well as shooting the location where I am at. तो ओके. कपल और लोकेशन का मिक्सचर मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ और मुझे वो चीज उस चीज में मुझे क्रिएटिविटी दिखती है और मुझे अलग अलग लेंसेज यूज करने में बहुत अच्छा लगता है तो मिक्स मैच करता हूँ कभी कभी ज्यादा कपल लेता हूँ तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा दिखाता हूँ बिकॉज वेडिंग इज एवरीथिंग अबाउट डेस्टिनेशन वेयर इट्स बीन शॉर्ट तो आई यूजुअली लाइक दैट स्टफ अ लॉट. राइट, राइट. सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जयदीप दैट यू आर मेंशनिंग, क्योंकि जो लोग अपने वेन्यू पे खर्चा कर रहे हैं या एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाके वेडिंग कर रहे हैं, उनको जितना इमोशंस और खुद के फेसेस देखने हैं, आई थिंक उनको उतना ही उनका डेस्टिनेशन जहाँ शादी हुई वो भी याद रखना है, वो भी मेमोरेबल है उनके लिए. एग्जैक्टली. वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें दोनों चीजें बतानी है. ट्रू, वेरी ट्रू.
टॉकिंग अबाउट वेडिंग्स मोर, डू यू थिंक कभी कभी कि वेडिंग इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज अ सिनेमाटोग्राफर या एज अ फोटोग्राफर ऐसी कोई चीजें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? तो आप क्या कहोगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमें शूट करनी ही चाहिए या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? Okay, so first of all, as a freelancer, the most important part about shooting a wedding is you have to cover the family. अगर अगर फैमिली में से कोई मिस हो गया ना, तो इतना सुनने को आता है, इसके चाचा नहीं आए, इसके मामा नहीं आए, ये नहीं हुआ. So that is the most important part. Family is number one priority. एंड मोर देन दैट देर इज लाइक सब वेडिंग में एक ऐसा कोई पर्सन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मान लो कि मेरे इधर किसी की शादी हो रही है, तो उनका कोई रिश्तेदार आया है यूएस से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है. और उन सब मतलब वेडिंग में जब क्राउड होता है तो सब उनको देख रहे होते हैं, सब उनके साथ बातें कर रहे होते हैं. सो दैट इज द मोमेंट दैट आई यू नो फील लाइक यू नेवर हैव टू मिस, बिकॉज वो लोग वो जब वेडिंग फिल्म देखेंगे तब वो पहले देखेंगे कि वो आए थे, वो कैसा हुआ होगा. सो राइट, family and the important person who is in the wedding is important for me to shoot. राइट. सो कपल इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली उससे भी सब ज्यादा उससे ऊपर है, फैमिली तो सबसे ऊपर है. या राइट. अब कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता है, मतलब आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो इन इन सर्टन एरियाज, बट जो अपकमिंग सिनेमाटोग्राफर्स है वो थोड़े से आर्ट के पीछे भागते हैं या कपल के पीछे भागते हैं, और वो सारी चीजें हम मिस कर देते हैं जिसको हम बहुत कैजुअल लैंग्वेज में कवरेज बोलते हैं. बट या कवरेज भी जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, राइट? या तो या आप जब शूट पे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो या आप किस प्रोसीजर से जाते हो या स्टेप्स से जाते हो कि ये ऐसे कवर करना है या फैमिली मेंबर्स को यहाँ कवर करना है या कौन फैमिली है? व्हाट इज योर प्रोसीजर? Okay, so first of all, as soon as I reach at the destination or as soon as I start shooting, जब पहला जो इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हल्दी हो रही है, तो हल्दी के टाइम पे या फिर मेहंदी के टाइम पे मैं जाके सबके साथ मेरा इंट्रो, पहले तो मेरा खुद का प्रेजेंटेशन ऐसा रखूंगा कि सबको इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करूंगा कि कैन यू प्लीज टेल मी हु इज योर मॉम, कैन यू प्लीज टेल मी हु इज योर मामा. तो ऐसे करके वन बाय वन स्लोली फॉर द फर्स्ट इवेंट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. एंड सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? आई टोटली हाँ, मतलब आप स्टेप्स कैसे रहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कपल इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन, बट फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हाँ आप क्या हाँ स्टेप्स लेते हो, लिस्ट बनाते हो कि इनको कैसे कवर करना है, आप कैसे हाँ आइडेंटिफाई करते हो? यस. सो सो द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन, सबसे ज्यादा सच धज के जो आते हैं पहली इवेंट में, वो मुझे पता चल जाता है कि ये मम्मी पापा है, ये ग्रूम ब्राइड है और ये उनके चाचा चाची है. ब्राइड साइड, ग्रूम साइड, बोथ साइड. अगर आप एक साइड से काम कर रहे हो तो एक साइड से आपको पता चल जाएगा. सो द थिंग इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द मेन person of the family. So that's how I identify them. From their clothes or from asking to the relatives, या फिर फॉर्म ओनर से डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि प्लीज सेंड मी व्हाट्सएप फोटोज ऑफ द फैमिली. तो उस हिसाब से मैं अगर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो ऐसे मैं मंगवा लेता हूँ. तो ये एक मेरा अप्रोच रहता है. राइट, राइट. Yeah, आपने एक स्टोरी वाला पॉइंट बोला कि इनका एंगल या इनकी स्टोरी समझना बहुत जरूरी है करके, yeah, राइट? yeah, सो एज अ yeah. सिनेमाटोग्राफर आप इस पे कैसे ध्यान देते हो, थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स आई एम श्योर आज ये सुनने को आए हैं, तो हाँ. आप वो स्टोरी कैसे पकड़ते हो या फ्लो कैसे पकड़ते हो? Okay, so when you're starting a shoot, when it हम्म. comes to showing your work to the firm or when it comes to the cinematography perspective, editing के हिसाब से थोड़ा वैसे देखा जाए तो कोई भी सिनेमेटोग्राफर या कोई भी फ्रीलांसर होता है, उसको पहले एडिटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है. थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक चले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. बिकॉज व्हेन यू आर शूटिंग अ वेडिंग यू गेट टू नो द पार्ट ऑफ योर शॉट्स, कि इसके बाद ये शॉट लगेगा, डेस्टिनेशन के बाद कपल का शॉट आएगा, कपल के शॉट के बाद थोड़ा प्रॉपर्टी का शॉट आएगा, प्रॉपर्टी के शॉट के बाद स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डांसिंग का कुछ होता है तो वो मोमेंट आएगा, या फिर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली द फ्लो गोज अप. तो उसको क्या राइट. बोलते हैं हम लोग, वो
म्यूजिक में एक पार्ट आता है जो आप बोलते हैं कि इट्स द म्यूजिक इज गोइंग अप स्लोली एंड देन द बीट्स गेटिंग अप, तो उसके हिसाब से राइट ऐसे ऐसे शॉट वन बाय वन शॉट करता हूँ। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। सो सॉरी, मैं इसको ही पकड़ के एक वापस सवाल पूछ रहा हूँ आपको। आपने श्योर। कहा कि थोड़ा सा एडिटिंग आना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे एज अ फोटोग्राफर, अब मैं कुछ सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो ये समझता है कि फोटोग्राफी करते करते एडिटिंग सुधर गया है, और जब मैं एडिटिंग को बैठता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या सोच के किसी ने वो फोटो या वीडियो लिया होगा। सो लिया होगा। आप इस चीज का एम्फोसिस कर दोगे तो व्यूअर्स को भी समझेगा कि क्यों एडिटिंग आना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद वो सोचते हैं कि बस मुझे, जो हमारे टर्म्स में हम बोलते हैं, एक्सपोजिंग करना है, लेकिन उसके पीछे एडिटिंग भी एक आर्ट है और जरूरी है। कैन यू एम्फसाइज ऑन दैट अ लिटिल? Okay, so if you are a fresh freelancer or a freelancer who is only doing shooting and nothing else, तो आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि सिनेमेटोग्राफी के पीछे मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन एडिटिंग, एंड मोस्ट ऑफ मोर ओवर दैट उसके ऊपर भी एक लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक। तो म्यूजिक एंड एडिटिंग इज द पार्ट ऑफ फिल्म और वेडिंग, शॉर्ट फिल्म और वट एवर यू कॉल इट। उसके पीछे जो काम रहता है वो सिर्फ एडिटिंग के अंदर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको जब शूट करोगे तो आपको इतना माइंड में सेट हो जाएगा कि ये फ्रेम के बाद ये फ्रेम लूंगा तो बीट में ये बैठेगा। ठीक है, मान लो कि मैं कपल का शूट कर रहा हूं, तो पहले मैंने वाइड शॉट लिया। जब वाइड शॉट लिया तो कपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, चल के आ रहे हैं दोनों, तो चल के आ रहे हैं, पीछे प्रॉपर्टी दिख रहा है, वाइड शॉट लिया। फिर उसके बाद आएगा मिडल शॉट, तो मिडल शॉट में आएगा कपल के फेस और उनके हाथ जो पकड़ के चल रहे उतना, और राइट उसके बाद आएगा थोड़ा क्लोजअप शॉट, टाइट शॉट, एक्सप्रेशंस राइट ले लो या फिर कट शॉट ले लो, सिर्फ हाथ का मूवमेंट या फिर सिर्फ उनके फेस का मूवमेंट। सो दैट्स हाउ यू शूट अ वेडिंग कंसिडरिंग द एडिटिंग पार्ट। और उसके बीच में अगर आप कट शॉट डाल सकते हो तो कोई झाड़ हिल रहा है या फिर कोई पीछे से बर्ड उड़ के जा रहा है, सो दैट्स हाउ क्रिएट अ स्टोरी ऑफ हाउ यू शूट अ सीक्वेंस ऑफ फिल्म। राइट। सो ये एडिट किए बगैर समझेगा नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। होना जरूरी है। somebody या करेक्टली मेंशन कि एक कोई भी फिल्म का 50% इम्पोर्टेंट पार्ट एक म्यूजिक होता है करके। सो किसी ने कमेंट में कहा था, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। म्यूजिक और या एडिटिंग उतना ही जरूरी है जितना शूट जरूरी है। दैट्स या राइट। एग्जैक्टली। टेल मी जरीब, आप फ्रीलांसिंग किए हो। एज अ फ्रीलांसर वेडिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली अपने क्या ड्यूटीज है एक क्लाइंट के तरफ, क्लाइंट मतलब कपल जिनकी शादी हो रही है, और अपने या क्या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस फर्म के लिए जिनके लिए हम शूट कर रहे हैं? सो द फर्स्ट ड्यूटी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, हिंदी में बात करूंगा, कि जैसे ही आप वेन्यू पे पहुंचते हो, बी हम्म। प्रेजेंटेबल। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं करता था मुझे इसका नॉलेज नहीं था, मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। 2012 13 14, 14 के बाद की बात कर रहा हूँ, 14 15 16 की। दैट टाइम आई वाज जस्ट लाइक प्रो, ऐसे बोलते हैं कि भाई फोटोग्राफी करने जा रहे हो तो टी शर्ट जींस चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, बट आई टोटली slowly when I started doing good weddings, then I did more good weddings, तो मेरे को पता चला कि you have to be presentable in front of couple as well as the client and the firm owner। आपका ड्रेस सेंस, आपका बोलने का थोड़ा स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आप प्लीज, थैंक यू, सॉरी, कैन यू प्लीज डू दैट, थोड़ा द थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड। बिकॉज कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपटाइट होते हैं, जिनको ऐसा होता है कि लाइक द पर्सन हु इज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ मी हैज टू बी समवन हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर प्रोफेशनल ओवर हिज वर्क। तो मैं क्या करता हूँ कि कपल के सामने साइलेंटली, हाउ यू डूइंग टुडे, कैसे हो, इंट्रोडक्शन दो, मेरा नाम जेडी है, मैं आपका वीडियो शूट करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू गुड एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू। तो एक्सप्लेन करके, थोड़ा बात करके, ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद देम, तो थोड़ा फ्रेंडली बट इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, तो ये हम्म। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम भी, यू नो स्किल एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज अनदर थिंग, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ इज, तो ये दोनों थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा मजा आएगा। सो दैट्स व्हाट माय राइट। पॉइंट अबाउट योर क्वेश्चन इज। ओके ओके। इसी पॉइंट को, जो आपने प्रेजेंटेशन की बात की है,
मैंने ये नोटिस किया इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, कभी आपने ये देखा है कि अगर हम अच्छे से प्रेजेंट करके जाए या अच्छी तरीके से ढंग से बात करें किसी से भी, तो ओवरऑल कपल क्या उस वेन्यू का हर पर्सन हमें इज्जत से अपने साथ बात करता है, हमें वो एक रिस्पेक्ट मिलती है। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट? यस एग्जैक्टली। यू नो व्हेन, जब मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि चलो मेहंदी है ना, मेहंदी में क्या पहन के जाए, बट लाइक यू नो एज एज अ प्रेजेंटेशन, तो मेहंदी में मैं चलो ग्रीन कुर्ता पहन के जाता हूँ। तो ग्रीन कुर्ता पहन के गया तो लाइक वंस दैट हैपेंड टू बी, एक स्टोरी हुआ था मेरे साथ। तो मैं जब गया था शूट पे ग्रीन कुर्ता पहन के, तो मुझे रिलेटिव ने आके किसी ने पूछा कि वाई आर यू वेयरिंग ग्रीन कुर्ता, मैंने बोला मेहंदी है। सो ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड yeah, that's really thoughtful that you are wearing green and a मेहंदी डे। तो थोड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, और जब आप किसी और को यू नो प्रेजेंट करने में अच्छे रहते हो। सो आई फील लाइक योर लाइक द क्वेश्चन दैट यू आस्क मी इज टोटली ट्रू। थोड़ा अच्छा लगता है और मिलता है रिस्पॉन्स। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी कभी ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, बात करते हो, स्टाफ के साथ भी अच्छे से डील करते हो, तो जिस वेन्यू पे आप हो वहाँ का होटल का स्टाफ या जो फूड काउंटर्स पे है वो स्टाफ भी आपको बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन what your attire is, how you are talking, how respectfully you are dealing with them. So या it's a very valid। उसी क्वेश्चन में मेरा और एक क्वेश्चन था जयदीप कि अपने एज अ फ्रीलांसर उस फर्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं? Okay, so for the firm, first of all, I would suggest the freelancer to ask their you know taste of work। मैं तो पूछ लेता हूँ कि अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे बता दो। आई विल शूट द थिंग दैट यू वांट एंड देन आई विल शूट द वे दैट आई वांट। तो मैं दोनों हम्म। काम करते कंफर्टेबल रहता हूँ। कभी कभार ये होता है कि फर्म ओनर बोल देते हैं कि आपके हिसाब से करो। सो देन आई हम्म। ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन। तो पूरे हम्म। वेडिंग में जो भी हो रहा है, जो इमोशंस मिल रहे हैं, जो डेकोर हो रहा है, सब मेरे हिसाब से मैं टीम के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके करता हूँ। द सेकेंड थिंग अबाउट फॉर्म ओनर्स, यू नो एज अ फ्रीलांसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्म ओनर्स इज दैट ग्रुप में कभी कभी चैट होता है कि वीडियोग्राफर्स की एक मीटिंग हो रही है, फोटोग्राफर्स की एक मीटिंग हो रही है। तो वीडियोग्राफर्स में दो या तीन बंदे, अगर दो होते हैं तो दोनों को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। इशारे में बातें होती है कभी कभार कि अगर मैं ये मेन परफॉर्मेंस ले रहा हूँ तो रिएक्शन कौन कर रहा है, सो लाइक यू गो दैट वे, तो समझ जाते हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल विद द फर्म ओनर्स एंड द टीम दैट यू आर वर्किंग विद। राइट। जब आप बोल रहे हो कि इशारों से बात होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि आप जिस फर्म के लिए शूट करने गए हो उनके साथ आप पहली बार काम कर रहे हो, शायद उनकी टीम को आप जानते नहीं हो, उस या वक्त आप कम्युनिकेशन रखते हो? दैट टाइम आई जस्ट कीप काम, आई डोंट टॉक मच। जो बोलते हैं वो सुनता हूँ। आई वर्क माई ओन हम्म। वे, मैं जब मेरे को जो चाहिए वो मैं काम करते रहता हूँ। बट उनका हम्म। जो आता है कि भाई ये थोड़ा छूट जाए ना, ये सब ले लेना, ये भूल ना जाओ, तो मैं मेरे हिसाब से कर हम्म। लेता हूँ। एंड देन आई टेल देम दैट इफ यू हैव सीन माई वर्क, आई यूजुअली डोंट फॉरगेट एनीथिंग, आई यू नो कवर एवरीथिंग। बट देन यू नो राइट। पहला पॉइंट मैंने जो पहले बताया था, मैं उनको पहले पूछ ही लेता हूँ जाके कि भाई आपको कोई है रिक्वायरमेंट तो प्लीज यू कैन टेल टू मी। राइट। 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 या एक क्वेश्चन पर बहुत आ रहा है जो हमें बाद में डील करना है, वेयर इज हेजू? सो शी इज एक्चुअली आउटसाइड। मैंने बोल दिया है कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब, दिस इज यू नो प्रोफेशनल लाइव सेशन एज अ वेडिंग सिनेमाटोग्राफर। तो बाहर खेल रही है ओके, मम्मी के साथ। मैं रहा नहीं जा रहा है क्योंकि सब लोग ये पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि या एक बार अब भी पूछ। सो बाय द वे ऑल द व्यूअर्स, हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में लेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज फील फ्री टू आस्क देम, जो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक एक राउंड करेंगे। बट ये हाँ, वाला ऑलरेडी 5 बार जयदीप आ गया था, तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ। ओनली ओनली वेडिंग सिनेमाटोग्राफी क्वेश्चंस करना है, क्योंकि ये मेरे जो व्यूअर्स है वो यूट्यूब वाले भी कुछ होंगे मेरे को, आई एम श्योर। सो प्लीज वेडिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछना अगर पूछ रहे हो तो। चलो ठीक है। ओके, सो यू नो वैलिड पॉइंट्स जयदीप की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टुवर्ड्स क्लाइंट एंड टुवर्ड्स द फर्म, वो आपने एक्सप्लेन किया। मुझे बताइए, जब आप फ्रीलांसिंग किए हो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए हैं या अड़चने आई हैं या चीजें हुई है आपके साथ जो आप चाहते हो कि इम्प्रूव हो जाए, या
उसको एक अलग तरीके से देखा जाए, ऐसे कोई चीजें हैं? ओके, सो दो तीन पॉइंट है, बट आई स्टार्ट विद द common thing that every freelancer has in mind. Time is the, ओके। time is very crucial for every freelancer. आराम करने को हमको बहुत कम मिलता है। तो जब फॉर्म ओनर्स हमको बोलते हैं कि 8 बजे पहुंचना है, सो वी यूजुअली थिंक इन माइंड के 7:45 को, 7:45 को हम लोग पहुंच जाएंगे। तो करेक्ट। हम लोग 7:45 को पहुंचते हैं, 8 बजे फंक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, नहीं होता है। 8:30 बजे नहीं होता है, 9 बज जाते हैं, कभी कभी 9:30 भी हो जाते हैं। सो द मेन थिंग दैट चेंज करने का जरूरत है एज अ फॉर्म ओनर और एज अ फ्रीलांसर। बट इसमें कभी कभी फॉर्म ओनर का वो क्या बोलते हैं, वो इश्यू नहीं होता है। कभी कभी क्लाइंट भी फॉर्म ओनर को प्रेशर करते रहते हैं। सो द थिंग इज दिस नीड्स टू बी चेंज अ लिटिल बिट। टाइमिंग तो प्रॉपर थोड़ा हो तो आराम करने को मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा, मजा आता है। आई थिंक यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। मैं आपको दूसरी साइड बताता हूँ इसकी, ठीक है? क्योंकि बिकॉज मैं फॉर्म चलाता हूँ, मुझे थोड़ी ये पता है क्लाइंट क्या करते हैं। बता, क्लाइंट के मॉम डैड उनको बोलते हैं बेटा 9:30 बजे पूजा शुरू होने वाला है, ठीक है? हाँ हाँ बेटा सुनता है कि मॉम डैड ने 9:30 बोला है। अब मॉम डैड ने ऑलरेडी 10 पता है मॉम डैड को, लेकिन बच्चे को 9:30 बोला ताकि पहले बच्चा टाइम पे आए। हाँ फिर बच्चा सोचता है कि मॉम डैड ने 9:30 बोला है, फोटोग्राफर को 9 बोल देता हूँ कहीं देर ना हो जाए, हाँ, स्पेशली जैसे सिटी में जहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती है। या फिर मैं ओनर सोचता हूँ कि मैं 9 बोल रहा हूँ, मतलब क्लाइंट ने 9 बोला है, तो चलो 8:30 बजे तो मैं पहुंच जाता हूँ। हाँ। और बाकी टीम को बोलता हूँ कि भाई वो लेट ना हो जाए, इसलिए 8 बजे ही आ जाओ। ये बजे की चीज आती है 8 बजे में। तो बट इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि थोड़ा टाइमिंग का इशू है, जितना रेस्ट हाँ, करने मिले वो अच्छा रहेगा। ट्रू, वेरी बहुत ट्रू। अच्छा रहेगा। यस यस। एंड दैट वाज या दैट वाज लाइक सब जहाँ पे भी मैं कहीं पे भी शूट करने जाता हूँ ना, सब फ्रीलांसर्स एक ही बात बोलते हैं, इतना जल्दी क्यों बुला देते हैं, इतना जल्दी क्यों बुला देते हैं। बट द थिंग इज इट्स नॉट द फॉर्म ओनर्स प्रॉब्लम, इट्स द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स हैव टू एंड देन सेटअप भी करना बहुत जरूरी है हमको पहुंच के। सो थिंक या। और दूसरा पॉइंट था कुछ, बट याद आएगा तो बोलूंगा। अभी थोड़ा मिक्स हो गया, तो या आई कैन टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट सॉरी। अगेन। नो नो नो, आपकी वजह से मैं थोड़ा सोचने में चला गया कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो इट्स टोटली फाइन। ओके ओके। सो हम या बात कर रहे थे कि और कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो क्या, उसके बारे में अगर आपको याद आ जाए तभी आप बता देना। श्योर। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हम फ्रीलांसर्स के भी इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करें, ताकि हाँ, उनको भी अगर उस चीज का सोल्यूशन मिल जाए तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है? ओके। हर आई बार आई आई फाउंड द पॉइंट, आई फाउंड द पॉइंट। या सो देखो, वेडिंग में दो चीज होती है, फोटोग्राफर होते हैं, सिनेमेटोग्राफर होते हैं। सो एज अ वेडिंग सिनेमेटोग्राफर, जब भी किसी भी चीज की एंट्री हुई या फिर किसी भी चीज का फोटोशूट करना होता है, तो फोटोग्राफर्स की फ्लैश सबसे ऊपर। फोटोग्राफर्स के जो थार 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 चलते रहते हैं। So as a wedding videographer or a cinematographer, the thing that irritates me the most is like when we are shooting the moment, there's a lot of disturbance of the flash and everything. So we have to coordinate with the team and everything. So that's the issue. And also the mobile. Jab clients one is gathered around and you get a lot of mobile in front of you. यस Hello. Yeah. So that is a यस little bit of problem when shooting a video. So that's the point I forgot, and now I got it. ओके ओके। थोड़ा मेरे साइड से बोल दो एक दो प्रॉब्लम। Sure, sure, sure. Please. तो थोड़ी अपनी भी जंग छिड़ जाए। मैंने बिकॉज मैं फोटोग्राफर हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि एंट्री के टाइम पे वो गिम्बल शॉट लेने के लिए अपना वीडियोग्राफर वो पूरा लेके अंदर घुस जाता है, वहां से लेके यहाँ तक खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। अरे भाई बाजू हो जा, मुझे भी एक फोटो लेनी है। तो Yeah, दैट्स that प्रॉब्लम। is, yeah. I totally agree with you. आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम ऑफ फ्लैशेस। आई थिंक आज के जमाने में बहुत सारे अच्छे कंटिन्यूअस लाइट अवेलेबल है जो असिस्टेंट हाथ में पकड़ सकता है, ठीक है? सो हर बार Yeah, वो yeah, फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली व्हेन आई शूट आई टेल टू असिस्टेंट्स ऑफ माइन, देखो अगर एंट्री हो रहा है तो
6 लोगों को शूट करने की जरूरत नहीं है, एक 4 जन करेंगे, 3 जन करेंगे तो भी काफी हो जाता है। सो आई टेल 2 पीपल काफी हो कि आप जाता 2 साइड लेके खड़े हो जाओ, बीट अपना हाको लाइट है या LC 500 है, 2 साइड से लेके खड़े हो जाओ एंड देन वी कैन शूट। तो आपको भी शॉट है। मिलेगा, हमें भी शॉट मिलेगा, और वो फ्लैशेस भी नहीं जाएंगे। बिकॉज फिल्म में भी देखते हो, वीडियो में जब वो, मुझे बहुत इरिटेट या होता है वो चीज। इरिटेट होता है, और वो फिर बीट बैठता नहीं है म्यूजिक में, कुछ करना चाहता है और करेक्ट, कुछ हो जाता है, और सो करेक्ट, करेक्ट, या दैट इज द प्रॉब्लम। या करेक्ट। आपको ऐसे लगता है क्या कि ये फ्लैश वाला प्रॉब्लम मंडप में भी होता है या कोई भी सिचुएशन में होता है, जब वो वरमाला के टाइम पे, एवरीवेयर, सिंदूर के? मेन जो जब मोमेंट कैप्चर होता है, जब इमोशन हो रहा होता है ना, तब जब एक साथ था 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 था, तो मैं सोचता हूँ यार क्या कर दे इसमें, क्या करूं। एक तो ऐसे हमारे कैमरे में ऐसा कोई अपग्रेड भी नहीं आता है फर्मवेयर के, फ्लिकर निकाल दे, फ्लैश का वो निकाल दे, हमको फ्लैट लाइट दे। तो करेक्ट। कुछ फ्यूचर में होगा टेक्नोलॉजी तो वी विल बी लकी, बट टिल कोई नहीं, देन आप वी हैव टू लाइट यूज करें, काम हो जाएगा। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नाइस, ओके। आपको और एक चीज बतानी है जो प्रॉब्लम है, आपने 3 बोला था, तो जब आपके दिमाग में आ जाए तो आप बता देना, मैं आ भूलने नहीं वाला जाएगा, हूँ। पक्का क्योंकि पक्का आ ये जाएगा, मुझे ऐसे है। तो सॉरी। एवरीबडी वुड बी हैप्पी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आई थिंक आपने वेडलांसर का प्लेटफॉर्म देखा होगा, आपने वेबसाइट देखी होगी वेडलांसर की। आपका मतलब देख के यस। आपको पहले क्या ख्याल आता है, आपको कैसे लगा? Okay, so my first impression of Wetlancer was that it is really, really attractive website, and it is really good for everyone, freelancer हो, farm owner हो, या फिर the, whatever who is using Wetlancer is like going to be happy, because Wetlancer में जब हमारे टाइम पे 2014, 15, 16 की बात करो, तब कुछ नहीं होता, जब रेफरेंस इज एवरीथिंग फॉर अ फ्रीलांसर और अ फॉर्म करेक्ट। ओनर, रेफरेंस के हिसाब से सबका काम चलता था। बट अब हम्म। Wetlancer का जो है, तो आई थिंक यू हैव अ गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर योर पोर्टफोलियो, आपका काम शेयर कर सकते हो, आपका यू you नो कुछ बता भी सकते हो, like as a resume, something that you don't have to personally send the farm owner के मेरा मेरा ये काम है, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ। So Wetlancer is a good platform. I feel like you guys have done a really, like Wetlancer has done a really good job. थैंक यू, थैंक यू। Most. चलिए, एक फ्रीलांसर आपको क्या लगता है, उनके लिए वेडलांसर एक अपॉर्चुनिटी है, एक थ्रेट है? आपको क्या लगता है, आप किस नजर से देखते हो? उनके लिए क्या It's an बेनिफिट्स? opportunity, 100%। बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी वाला है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। बिकॉज द थिंग इज, देखो अगर मैं बात करूं सूरत की, तो अभी सूरत में बैठ के मैं एक जगह पे बैठ के कितना काम खींच सकता हूँ एज अ फ्रीलांसर। अगर मैं वेडलेंसर में हूं तो मुझे पूरा इंडिया देखेगा, या फिर पूरा मतलब जो भी जितने भी जहां से भी वेडलेंसर में देख रहे हैं मुझे, एटलीस्ट इतने सारे फॉर्म ओनर है, उसमें से एक या दो अच्छे फॉर्म वाले मिल जाएंगे। आई गेट गुड फॉर्म ओनर्स एज वेल एज आई गेट गुड लीड्स फ्रॉम पीपल दैट रिकमेंड्स माय प्रोफाइल टू द फॉर्म ओनर्स। तो आई करेक्ट, थिंक इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी फ्रीलांसर टू कम अप ऑन वेडलेंसर एंड रजिस्टर देमसेल्फ। करेक्ट, करेक्ट। जयदीप, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला, सो आई विल लाइक टू ऐड ऑन टू इट कि अगर मुझे वहां से एक या दो रेफरेंस या एक या दो काम आ जाते हैं तो भी काफी है। मैं इसलिए उस पॉइंट को पकड़ रहा हूं क्योंकि देखते वक्त हमें वो एक या दो फर्म आ रहे ऐसे लगता है, बट अगर हम उनका पहला या दूसरा काम अच्छा कर ले तो हमें साल भर वहां से काम मिल सकता। सो ये या एक आई एग्री। एक फर्म जब आएगा या दो फर्म जो आएंगे तो वो 2 डेट नहीं देंगे, काम अगर अच्छा रहा तो वो हमें 20, 30, 40 डेट्स भी दे सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, जयदीप। इज इट हेल्पफुल फॉर फर्म ओनर्स एंड इन व्हाट वे इज व्हाट यू थिंक? फॉर्म ओनर्स के लिए एक पॉइंट ये है कि लाइक मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। हम्म। जब भी मैं कोई नए फर्म ओनर्स के साथ काम करता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ व्हाई डिड यू हायर मी। हम्म। तो एज अ फ्रीलांसर आई गेट टू गेट अ आंसर दैट हमारे लिए भी चेंज बहुत जरूरी है। कोई भी एक बंदा एक कंपनी में 5 साल काम करेगा, देन ही हैज द नॉलेज ऑफ व्हाट द फर्म ओनर्स वांट। बट एज अ करेक्ट, फ्रीलांसर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज।
यू राइट। नो। तो फ्रीलांसर और फॉर्म ओनर के साथ जो बातें होती है वो मैं डायरेक्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं कि वी नीड चेंज इन आवर फिल्म एंड वी नीड क्रिएटिविटी एंड वी नीड पीपल दैट गिव्स अस गुड एक्सपीरियंस एज वेल एज गुड कंटेंट। करेक्ट। सो आई फील लाइक वेडलेंसर के प्लेटफॉर्म के पे ये हो सकता है, फॉर्म ओनर के पास बहुत अच्छा वो प्लस पॉइंट है। करेक्ट एंड ऑल्सो वैरायटी, राइट, बिकॉज इफ आई एम वर्किंग विद सेम राइट। मोर और लेस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा, बट मोर और लेस वही कंटेंट निकलते रहेगा। सो इफ यू वर्क विथ न्यू हाँ। पीपल, डिफरेंट पीपल, एवरी नाउ एंड देन, तो कंटेंट भी बदल सकता है आपके फिल्म्स में, आपके आउटपुट में भी वैरायटी आ सकती है। सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ट्रू। यस। हमने भी यही सोच के स्टार्ट किया था वेडलांसर कि यार दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, राइट। वरना ऐसे होता है कि या बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो एक सिटी से बिलोंग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इस सिटी से बाहर कैसे निकले। ठीक है। और या जो जो फर्म ओनर्स है, उनको सपोज एक दूसरे सिटी में वेडिंग करना है या डेस्टिनेशन में वेडिंग करना है, किसी को लोकली हायर करना है या कोई नया टैलेंट देखना है, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई आप यहाँ पे आके देखो, बहुत talented लोग मिलेंगे। So yeah, I mean, या what's the whole reason or motive behind starting this platform? या Uh, cool. आपको वो थर्ड वाला याद आया कुछ कि हम क्वेश्चंस ले ले? आई फील या थोड़ा क्वेश्चंस में अगर कुछ मिल जाएगा हिंट तो बोल दूंगा, अभी तो याद आया नहीं है बट लेट्स चलो। सी। Guys, we are open for questions. I mean, Jaideep is open for questions, so start shooting the questions. Let's handle them one by one. या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो, अच्छे अच्छे सवाल पूछ लो। वेडिंग सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग एनीथिंग। Somebody was asking जयदीप थोड़ी देर पहले कि मुझे फूजी से शूट करना है और हैंडहेल्ड शूट करना है, शेकी ना आए फुटेज, इसलिए क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि ये फूजी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ओवरऑल कैमरा रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि शेकी ना आए। तो कैन यू आंसर दैट? शेकी फुटेज नहीं चाहिए उसका एक, लाइक मैं थोड़ा टेक्निक में जाऊंगा। यू हैव हाँ। अ टेक्निक कॉल्ड ब्रीथ इन। तो देर इज अ शॉट, लाइक वेन एवर यू आर शूटिंग फोटो और अ वीडियो यू हैव अ ब्रीथ इन टेक्निक। सांस लो, रोक लो, फिर शॉट लो, फिर सांस छोड़ो। इट्स गुड एज ए योगा एज वेल, तो you can use that technique for I usually do that whenever I'm shooting a handheld shots। तो थोड़ी थोड़ी बार मैं कर लेता हूँ, ब्रीथ इन लेके होल्ड करके शॉट एकदम स्टेडी वाला लेके फिर छोड़ देता हूँ सांस, तो यू कैन यूज दैट टेक्निक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उससे सिनेमैटिक शॉट्स लेने में भी हेल्प होगा। यू आर नॉट शूटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर वेरी क्रिएटिव। वो उतने सेकंड्स के आप शॉट्स ले रहे हो, देन यू आर मूविंग ऑन। वेरी नाइस टेक्निक। दो जनों ने क्वेश्चन पूछा है, मेनी पीपल विल आस्क कि कौन सा कैमरा बेस्ट है, कौन से लेंसेज बेस्ट है। सो आई थिंक यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। ओके। देखो, कैमरा और लेंस के जंग बहुत सालों से चल रही है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी डिबेट कर दी है। बट पर्सनली व्हाट आई फील इज, आपको जो पर्सनली अच्छा लगता है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल शूटिंग इन, यू ब्रिंग दैट कैमरा विथ यू। देखो, अगर कैनन की बात, अभी अभी मैं थोड़ा उसके ऊपर का एक बात बताता हूँ कि इसमें डिबेट क्यों होता है। हमारे इंडिया में रीजन्स पड़ चुके हैं। गुजरात है, कैनन होना चाहिए। दिल्ली है, सोनी होना चाहिए। मुंबई है तो ये होना चाहिए। सो आई फील लाइक you should be comfortable in what you are shooting. I have been shooting in 1DX Mark II since I don't know 2016। वो मेरा कैमरा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही चल रहा है, चलाते जा रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। आई हैव शॉट इन फ्यूजी फिल्म एज वेल। मेरे पास फ्यूजी फिल्म का एक अलग बॉडी है जो मैं सिर्फ गिम्बल पे शॉट करता हूँ। तो एज एन एक्स्ट्रा बॉडी, सो एज अ फ्रीलांसर आई शूट विद टू बॉडीज। एक जो 1DX है वो मेरे बेल्ट पे रख के मैं साइड पे रखता हूँ, और वो गिम्बल का, तो लेंस चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मोमेंट मिस करना नहीं चाहता हूँ। तो कैनन फ्यूजी फिल्म का मेल कभी नहीं होता है अगर आप देखे जाए तो, पर मैं शूट करता हूँ इसीलिए बिकॉज मैंने दोनों कैमरा के अंदर सीने स्टाइल डाल दिया है। तो सीने स्टाइल मीन्स फ्लैट टोन दैट यू रियली वांट फॉर एडिटिंग पर्पस। सो बातें करा जाए तो मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट द कैमराज, बट गो विद द कंफर्टेबिलिटी दैट यू लाइक। राइट, राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। किसी ने पूछा था कि वेडलांसर पे रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हैं क्या? यस, रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ओपन।
आप सीधा डायरेक्ट फोन करके या कांटेक्ट करके हमें डीएम करके भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई हेल्प है चाहिए तो। रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। ओके, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जयदीप, पीपल वर आस्किंग कि सिनेमेटोग्राफी के क्या टेक्निक्स है जो आप रिकमेंड करोगे? आई थिंक एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया था, बट कुछ आपके टॉप ऑफ द माइंड अगर आता है तो यू कैन से। सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ओके, देखो, स्किल अलग है, टैलेंट अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अलग है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सिनेमेटोग्राफी। मोमेंट कहाँ से कहाँ जाने वाला है और कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, कहाँ एंड होने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए। आपका सिक्स सेंस थोड़ा बूस्टअप करना जरूरी है आपकी सिनेमेटोग्राफी लाइफ में। तो जहां तक मैं मानता हूं कि मैं जब वेडिंग शूट करता हूं तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ वो मोमेंट में ही रहता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से कहाँ चीजें जा रही है और किसका इमोशन कहाँ मिल रहा है। सो आई फील लाइक यू शुड वर्क ऑन दैट थिंग। राइट। मेरा सबसे शानदार टेक्निक बता दिया मैंने आपको। जयदीप, मुझे पर्सनल सवाल है इस चीज पे, क्योंकि मैंने बहुत बार जो यंग सिनेमाटोग्राफर्स है जो थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड है उनको देखा है कि गलत मूवमेंट पे जाके शॉट बंद कर देते हैं, शायद उसके आगे कुछ होने हाँ, वाला है और जो मिस हो जाता है। तो इवन डांस के टाइम पे जब गाना चल रहा है या डीजे गाना प्ले कर रहा है, तो जिस बीट पे गाना ऊपर जा रहा है जहां सबसे बेस्ट मूवमेंट्स मिलने वाले हैं उससे थोड़ा पहले वीडियो बंद कर देते हैं एंड देन दे मिस इट। सो ये कैसे ध्यान में रखे कि कहाँ तक चालू रखना है वीडियो, कहाँ बंद करना है? ओके, सो ये आपने जो बोला ना, मेरे माइंड में इतना अच्छा एक वो आया। परफॉर्मेंस, मैं थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। जब संगीत नाइट होता है तो परफॉर्मेंस के टाइम पे यू हैव टू बी गुड। जब हमने लाइव चालू किया था तब हमने बात की थी कि म्यूजिक इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस। तो थोड़े म्यूजिक जब परफॉर्मेंस पे होते हैं तो जब बीट हाई होता है वो मोमेंट ऐसा होता है जो सब लोगों कैप्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एडिटिंग का टाइम आता है तब वही मोमेंट हाईलाइट में या फिर शॉर्ट फिल्म में या फिर टीजर में लगने वाला होता है। So for me, some emotions, some dramas, and some beats are really important when shooting a wedding, performance or everything. So as a newbie, as a new freelancer, you have to be really, sharp about your shooting. आपको इतना sharp रहना जरूरी है कि इसके बाद ये आएगा तो रिकॉर्ड बंद करने की जल्दी मत करो कभी भी। मैं तो कभी कभी मेरी क्लिप 30-30, 40-40 सेकंड तक चली जाती है, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद ये होगा ये होगा, एडिटर समझ लेगा। तो राइट। जब मेन होता है तब बंद मत करो। जब कोई और चीज आप शूट कर रहे हो तब बंद कर दो तो चल जाता है, बट जब मेन थिंग चालू होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंदूर हो रहा होता है, तो सिंदूर के टाइम पे अगर आपने इधर आया और बंद कर दिया, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इधर आया, पूरा डाला, फिर निकाल लिया, फिर उन दोनों की स्माइल जब आती है एंड में एक करेक्ट। दूसरे को देखने के बाद, दैट इज द पॉइंट दैट आई रियली फील लाइक वो शूट होना बहुत जरूरी है। ट्रू ट्रू। सिमिलर थिंग आई ऑब्जर्व, जब स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस चल रहा है और वो परफॉर्मेंस जब खत्म हो जाता है, फिर वो कपल का हो या इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर्स का हो, वो खत्म होने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन हमेशा मिलता है। सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू या टर्न द एक ऑडियंस का रिएक्शन, क्योंकि वहां वो क्लैपिंग सीटी मारना सब वहां पे हो जाता है। सो वेरी वेरी मिल वैलिड। जाता है। चलिए, दो या तीन टेक्निकल क्वेश्चंस हमने ले लिए थे, तो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का क्वेश्चन लेते हैं। कोई पूछ रहा है कि आपको खाना टाइम पे मिलता है क्या? थोड़े खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर। बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा एक्चुअली एक ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने हाँ। स्पेशली खाने के ऊपर डाला है पॉइंट। तो खाने ओके। का देखो भाई, ऐसा है कि द थिंग इज, एज अ फ्रीलांसर, एज अ वेडिंग, जब आप वेडिंग के इंडस्ट्री में एज अ फ्रीलांसर घुसते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा चीजों में करना पड़ता है। आपकी नींद, आपका खाना, आपका ट्रैवल, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग। तो खाना यू नो मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो चाय से काम चल जाता है। इट्स नॉट लाइक इम्पोर्टेंट चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। राइट राइट। कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ ऐसा खाना जो आप बैग में कैरी कर सकते हो, आई विल से वो हमेशा साथ में रखो। कोई चॉकलेट्स, स्नीकर जैसा कुछ साथ में या रखो, तो पेट हमेशा फुल रहेगा और वो खाने की आप इंतजार नहीं करते रहोगे। दैट्स द बेस्ट थिंग। बट हाँ, हाँ, एंड ऑलवेज ऑलवेज या ऑलवेज ड्राई फ्रूट एंड एवरीथिंग इज गुड। ट्रू ट्रू ट्रू।
ओके गाइस, मोर क्वेश्चंस प्लीज। जयदीप सर, आपके पास टाइम है थोड़ा और, राइट? या आई एम टोटली फ्री। somebody is asking, फ्रीलांसर हूं मैं नया, मैं फर्म ओनर से कैसे कांटेक्ट करूं? इसका आंसर मैं ही दे देता हूं। प्लीज रजिस्टर ऑन वेडलांसर। आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका काम देख के फर्म वाले ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और लोगों को काम भी मिलना शुरू हो गया है। सो प्रोसेस को डिले मत करना, क्योंकि सीजन कुछ ही महीने में स्टार्ट हो जाएगा अभी। हाँ, बुकिंग सिनेमा चालू हो। asking which lens are you using, Jaydeep? ओके, वैसे देखा जाए तो मैं 4 लेंस से काम करता हूँ। मेरे पास एक 20 mm है जो 2.8 है, एक 50 mm है 1.2 है, उसके बीच में 35 mm है 1.4 है, और एक 100 mm है। तो ये स्पेसिफिक 4 लेंसेज आई शूट माय वेडिंग्स और शूट एनी वेडिंग्स। 20 mm के लिए मैं डेस्टिनेशन दिखाता हूँ, जो गिम्बल में शॉट बनते हैं वो दिख करता हूँ। 35 में भी गिम्बल के शॉट लेता हूँ, कपल के शॉट लेता हूँ, ये दोनों में ये यूज करता हूँ। 50 mm में मैं पोर्ट्रेट्स यूज करता हूँ, पोर्ट्रेट्स के लिए स्पेशली फॉर द फील ऑफ गिविंग गाइज द फैमिली मेंबर्स एंड एवरीवन। और 100 mm में गेटिंग रेडी के शॉट्स के लिए यूज करता हूँ। सो दैट्स अबाउट द लेंसेज। नाइस। मेरा पर्सनल सवाल है, बिकॉज आई एम अ फूजी यूजर, आप गिम्बल पे फूजी का कौन सा लेंस यूज कर रहे हो? 23 1.4, so that is 35, equivalent to 35. नाइस, नाइस। somebody is asking, जयदीप भाई कुछ एडवांस फिल्म मेकिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करो। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड और से अबाउट दैट? एडवांस फिल्म मेकिंग, देखो यार, एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू बी गोइंग टू द एडवांस पार्ट। जितना हो सके उतना हॉलीवुड के मूवीज देखो, या फिर अपने बॉलीवुड के अगर देखना है तो संजय लीला भंसाली के सेटअप का देखो, बैकग्राउंड देखो। स्टोरी लाइन पे मत जाओ, बस उनके बैकग्राउंड का जो जो शॉट लेते हैं स्ट्रेट बैकग्राउंड के साथ वो देखो। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, एक चीज की बात करूंगा, शेडो एंड लाइट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टफ दैट यू गाइज हैव टू वर्क ऑन व्हेन यू आर शूटिंग अ वेडिंग और एनीथिंग। तो शेडो पे थोड़ा काम ज्यादा करो, और लाइट्स पे थोड़ा काम, कहाँ से लाइट कहाँ जा रही है और कहाँ से बाउंस हो रही है, कहाँ पे लाइट मिल रही है। सो सबसे ऊपर तो लाइट ही आती है, तो लाइट थोड़ा सीख लो तो एडवांस पे थोड़ा आप पहुंच जाओगे। राइट, राइट, ट्रू। जयदीप, somebody is asking, जो डबल बेल्ट होता है वो सिनेमाटोग्राफर के लिए यूजफुल है क्या? यस, आई पर्सनली फील लाइक इट इज यूजफुल, बिकॉज मैं भी पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ वो बेल्ट। एक साइड पे मेरा फ्यूजी डाल देता हूँ 24-70, मतलब 16-55, जो मेरा रेगुलर लेंस रहता है जो ट्रेडिशनल शूट करने के लिए, और एक साइड 1DX होता है 50 mm पोर्ट्रेट्स के लिए। तो दोनों कैमरा डालने से फायदा ये होता है कि आपको लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोमेंट मिस नहीं होगा। एंड व्हेन यू आर शूटिंग हैंड हेल्ड, वो बेल्ट से आपका थोड़ा ऐसा, जब बेल्ट सीधा करते हो तो कड़क हो जाता है आपका कैमरा, तो इट्स गुड टू गेट अ हैंड हेल्ड शॉट्स। राइट, करेक्ट। जयदीप, वन और टू मोर क्वेश्चंस आई कैन सी ओवर हियर। एक कॉमन क्वेश्चन है, वो बाद में लेता हूँ। somebody is asking, इंस्टाग्राम में क्लाइंट कैसे ढूंढना है? आई विल आंसर इन शॉर्ट, बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इस चीज का। कंटेंट से लेके, प्रमोशन से लेके, कितना कंटेंट डालना है, किस टाइम पे डालना है, बहुत डीप में जाना पड़ता है इस चीज के। आई विल से वेडलांसर इज कमिंग अप विथ अ कोर्स जो प्रॉपर इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे है। आई विल टेल यू, आप वो कोर्स सब्सक्राइब कर लो, सारे क्वेश्चन का आंसर है वहां पे। अभिषेक इज कमिंग। सो वाओ, so लेट्स he, वेलकम हिम। like Instagram guru, like 50,000 फॉलो, वो खुद बताएगा कि वो आए कैसे, तो और क्या चाहिए। uh, एक कॉमन क्वेश्चन, जयदीप, आप इसका आंसर आपके हिसाब से देख लो। एवरीबडी इज आस्किंग, आप कहाँ रहते हो, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है? आप देख लो इसमें से क्या बताना है। ईमेल आईडी jdphotofilms@gmail.com, और मैं सूरत में रहता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर, आई फील लाइक इट शुड बी इट शुड बी फॉर बिजनेस पर्पस ओनली।
ट्रू। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा है किसी ने, भाविन इज आस्किंग दैट क्वेश्चन एक्चुअली, कि इतने साल से आप काम कर रहे हो, आपका फेवरेट टीम कौन सा है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, देख लो भाई। फेवरेट टीम, टीम, ओह माय गॉड, टीम। मैंने बहुत सारे लोगों से काम किया है, मतलब पर्सनली स्पीकिंग आई वर्क एज अ फ्रेंड विथ एवरीवन एंड आई लाइक, जब भी मैं किसी भी टीम के साथ काम करता हूँ मैं पहले ही जाके उनके साथ ऐसा जुल मिल जाता हूँ कि आई डोंट यू नो आई डोंट रियली हैव स्पेसिफिक टीम दैट आई रियली लव। सबके साथ, जितने भी सबके साथ काम किए सब मेरे फेवरेट है और सब अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है, तो फेवरेट ही राइट, है सब। राइट। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, वो पेरेंट्स को पूछते हैं ना कि आप दो में से कौन सा फेवरेट बच्चा है आपका, वैसा वाला क्वेश्चन था ये। वी आर नॉट दैट ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। या is asking about वेडलांसर। ही इज आस्किंग कि ऐसा कुछ अपडेट्स डालो वेडलांसर पे कि फर्म वाले उनके डेट पोस्ट करे और हमें पता चले कि कौन से डेट पे लोगों को काम चाहिए, तो हम कांटेक्ट कर सके। सचिन सॉरी, उससे बहुत सारा स्पैमिंग होता है, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट स्पैमिंग ना हो इसीलिए वेडलांसर प्लेटफॉर्म हुआ है, ताकि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करे फर्म ओनर, ठीक है? तो डोंट लूज होप। अगर आपका काम अच्छा है, आप वेडलांसर पे रजिस्टर्ड हो, तो कोई ना कोई फर्म ओनर जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि फ्रीलांसर्स की हमेशा सबको जरूरत रहती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टे कनेक्टेड विद वेडलांसर इज व्हाट आई वुड से। Somebody's asking how to shoot Sangeet with two bodies. Okay, या so the question was how to shoot Sangeet दो बॉडीज को लेके, टू बॉडीज के साथ। ओके, तो पर्सनली मैं कैसे करता हूँ, दो बॉडीज में एक बॉडी मैं गिम्बल पे डाल देता हूँ और एक बॉडी मैं बेल्ट जो पहना होता है बेल्ट पे रखता हूँ। जैसे ही संगीत स्टार्ट होता है गिम्बल का रिकॉर्ड पहले दबा देता हूँ और दूसरा बॉडी का रिकॉर्ड पहले दबा देता हूँ। मैं संगीत ऑलवेज पूरा सॉन्ग शूट करता हूँ, मैं कभी भी ब्रेक नहीं मारता हूँ बीच में, बिकॉज एडिटर को अच्छा रहता है किसके बाद कौन सा शॉट लगना है। सो व्हाट आई डू इज जब मेन बीट हाई होता है तब गिम्बल चला लेता हूँ पूरा राउंड 360 या फिर पीछे लेके, एंड वो जब खत्म हो जाता है रिकॉर्ड चालू ही रखता हूँ, गिम्बल नीचे रख देता हूँ एक एंगल बना के चालू में ही, और मेरा हैंड हेल्ड जो दूसरा बॉडी है उससे हैंड हेल्ड शॉट लेता हूँ। सो बोथ द एंगल्स कैन बी यूज्ड एंड बोथ द बॉडीज कैन बी परफेक्टली मैच्ड व्हेन यू आर एडिटिंग। अमेजिंग, अमेजिंग टेक्निक, हैट्स ऑफ मैन। लाइक मुझे भी नहीं पता था कि ये भी हो सकता है, बिकॉज यूजुअली पीपल शूट विद वन कैमरा बॉडी, बट दिस इज अनदर लेवल। गाइस, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। सो जयदीप, कितने सवाल ले ले? और दो तीन? एनीथिंग, दो एनीथिंग? एक दो एनीथिंग, आई एम फ्री ओके, टिल 10, तो तो गाइस पांच लास्ट टू पांच क्वेश्चन। मिनट और खींचते। पांच हो गए, ठीक है। या सो गाइस, लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस, चलो क्विकली आस्क। Somebody's asking which Fuji should I buy, Fujinon 56 1.2 or Viltrox 56? Buddy, both are very good lenses. Being a Fuji camera owner, I can clearly say that. दोनों बहुत अच्छे लेंसेस है। थोड़ा सा आपका बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, लेकिन मतलब बोथ आर ग्रेट। या विल्ट्रॉक्स का मैंने सुना था, एक दो बंदे ने मुझे बोला था विल्ट्रॉक्स का कलर वेरिएशन थोड़ा आता है, बट द थिंग इज फ्यूजिनॉन के जो लेंसेज है वो प्राइस फॉर मनी है, ऑल द लेंसेज आर प्राइस फॉर मनी। आई हैव जस्ट बॉट 816, 816 लिया मैंने 2.8 डेकोर के लिए। माय गॉड, जो स्मूथनेस मिलती है, ओ हो मक्खन। एब्सोल्युटली। सी, जब आप ओरिजिनल लेंसेज खरीदते हो, मतलब थर्ड पार्टी नहीं खरीदते हो, उसी ब्रांड के खरीदते हो, तो ऑब्वियसली उतना आपको हेल्प करेगा। सो अगर बजट है तो ऑब्वियसली गो फॉर द ब्रांड। इफ नॉट, देन थर्ड या पार्टी लेंसेज आर ऑलवेज अवेलेबल। या फ्रीलांसर्स को पेमेंट टाइम पे मिले, उसके लिए कुछ कुछ बताइए, कुछ कर दो। हमको तो मिल जाता है। भाई अच्छा काम करो, और आई वुड से कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ उस शूट तक मत रखो। ट्राई टू कंट्रीब्यूट इनटू फर्म ओनर और क्लाइंट्स लाइफ। थोड़ा सा शूट के बाद भी टच में रहना, उनको पूछना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करो, मेरा फुटेज कैसे लगा। अपने आप दोस्ती बढ़ जाती है, पेमेंट के इश्यूज नहीं आते हैं। तो सो प्लीज डू दैट, मतलब एक ह्यूमन लेवल पे इंटरेक्शंस रखो। या एक एक क्वेश्चन आया है ऊपर,
it हाँ, should be difficult for handling 1DX and run 360 degree and manage it. Practice makes man perfect. ओके, If you have seen me shooting, अगर आपने मुझे नहीं देखा है तो let me give you a, I will put a story on my some, कभी भी ऐसा कुछ डालूंगा जितने भी लोगों से मैंने काम किया है, आप जैसे मैंने आपने मुझे रिएक्ट दिया कि आई हैव नेवर हर्ड दैट बिफोर, और ये थोड़ा नया चीज जानने को मिला. सो यू नो आई हैव बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ शूट सिंस लास्ट 2 or 3 years, एंड मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, और फॉर्म ओनर्स का फोन आता है कि सेंटर वाले कैमरा का कम यूज किया है, तेरा ज्यादा यूज किया है. सो दैट फील्स गुड, यू नो. सो यू नो इट्स प्रैक्टिस थोड़ा करते रहो, सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. सो आई थिंक दैट आंसर्स की पेमेंट कभी भी नहीं रुकेगा. अगर आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हो, कभी भी नहीं रुकेगा. नितिन इज या आस्किंग कि ये इतने हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं, आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे संभालते हो? फटीग नहीं आता है या बोर नहीं हो जाते हो क्या? हाउ टू मैनेज दैट? कीप योर माइंड एंटरटेनिंग एवरी सिंगल डे. और आप जहाँ पे जाते हो, आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ इतना आप, मतलब एज अ फैमिली यू आर वर्क लाइक, आप घर से ज्यादा उन लोगों के साथ रहते हो. मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि वेडिंग सीजन में घर से ज्यादा आप टीम के साथ रहते हो. तो उनके साथ ऐसा रहो कि आपको ऐसा टाइम ही ना मिले कि आपको, मतलब थकान हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है. बस आपको काम करना है, मजे लेना है, और आपका कंटेंट प्रोड्यूस करना है, और आपका मोमेंट मिस नहीं करना है. तो आप अपने आप उसमें खुश रहोगे. Perfect, perfect. I think we have taken a lot of questions by now. और मैं खुद बोलूंगा या कि 8 साल से शूट कर रहा हूँ और वीडियोग्राफर्स को साइड बाय साइड देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ही बहुत कुछ सीखा है ऑलरेडी. तो आई एम श्योर यस. व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीख लिया होगा. सो जयदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड डूइंग दिस. Any last words or anything that you want to say, and then probably we can stop. Well, Puneet, thank you so much for calling me out and asking me out, and मुझे बताया कि वेटलैंसर पे आना है, थोड़ी बातें करनी है. आई एम रियली थैंकफुल. और जितने भी लोग ने ये वीडियो पहले से एंड तक देखा है, आई थिंक 250 तो पक्के पहले से एंड तक थे ही. तो हाँ, जितने भी more. लोग ने पहले से एंड तक देखा है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने जितना भी लर्न किया है वो पुनीत सर की वजह से हो, बिकॉज उन्होंने, मतलब वेटलैंसर जो बनाया है वो फ्यूचर का देख के बनाया है. तो फ्यूचर को ध्यान में रख के वेटलैंसर को आप प्रोफाइल डालो, रजिस्टर करो, एंजॉय करो, और हैप्पी शूटिंग. सीजन इज कमिंग. आई होप यू गाइज विल बी रियली हैप्पी. Thank you, Jaydeep. Thank you so much for coming live. मोस्ट वेलकम, Bye, मोस्ट वेलकम. guys. माय प्लेजर. बाय बाय. गुड नाइट. Good night, everyone.